In the last class, you had practiced tenses. Now we are moving towards the next concept of grammar that is related to tenses and that we call as modal verbs. तो आज हम लोग जो है modal verbs को we are going to discuss. Then we would be moving to the next grammatical concept in the next few classes. While you were practicing the tenses, you must have come across problems कि यहाँ पर हम क्या लगाएं. And believe me, when it comes to modal, the students face it like what they feel is that it's quite tricky. But it is actually not tricky. When it comes to the written part, when it comes to the daily life, we need to understand कि किसी word को हम कहाँ पर use कर सकते हैं. And definitely जो words हैं, जो verbs हैं हमारे, they can be changed as per the situation of the sentence. तो modal verbs क्या है? You might have seen कि there is a simple word. एक sentence है, simple sentence है. I play chess. This is a very simple sentence. I play chess. Now, I play chess का मतलब है मैं chess खेलती हूँ. Now, the same sentence हमारा यही है I play chess. But हम इसको present अलग अलग तरीके से कर सकते हैं as per situation. Example अगर मैं कहूँ मैं chess खेल सकती हूँ, the word हिंदी में you need to always remember जब आप इन sentences को पढ़ते हो तो once in your mind translate it. तो if I say कि मैं खेल सकती हूँ, तो the same sentence I would say I can. If I want to refer it to something, शायद, तो I may. मैं खेलूंगी, I will. यानी सेंटेंस हमारा सेम था, that is I play chess, but the words which we say can, may or will change the entire meaning. तो जो आपका सेंटेंस है उसका मीनिंग बदल गया. आई कैन मतलब मैं खेल सकती हूँ, आई मे मतलब शायद मैं खेलूं, आई विल मतलब मैं खेलूंगी. So this is according to the situation when we are adding the verbs to give it a proper what we call as meaning. उसको हम बोलते हैं modal verbs. And we have many modal verbs. Everything which is used along with the main verb हम उसको modal बोलते हैं. But जो हम main in our sentences हम use करते हैं वो है can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to. And yes, of course, we have what we call as need to, has to, have to. We also have these as the modal verbs.
बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली वी स्टार्ट विथ कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड ought टू। मीन्स सबसे पहले हम लोग इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर व्हाट डज इट स्टैंड। So let us start. We would be starting very well with can. Can हमारा होता है in the first way it is ability. किसी भी चीज को करने की in हिंदी what you call as क्षमता, मतलब मैं ये काम कर सकती हूँ। We use it, मैं ये काम कर सकती हूँ। तो can is in another way we call it as ability. Sorry. Moreover, it can also be permission. Now, permission may से भी जाता है, permission will से भी जा सकता है। तो when it comes to can, क्या मैं जा सकती हूँ? और it may be a probability. Probability मतलब हो सकता है, हो सकता है, something जो शायद हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो कैन इज व्हेन देयर इज, बेसिकली तो हम लोग यूज करते हैं फॉर एबिलिटी, देन वी ऑल्सो यूज इट फॉर परमिशन, कैन आई। देन प्रोबेबिलिटी यानी कि शायद, कुड। इन सिंपल लैंग्वेज वी से कैन इज द पास्ट टेंस ऑफ कुड, इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। लेकिन अगर हम इसको मीनिंग से समझते हैं तो इट इज पास्ट एबिलिटी, यानी कि जो मैं पहले कर सकती थी मे बी अब नहीं कर सकती। Let us have some what you call as examples. Ability, can, मैं ये काम कर सकती हूँ। I can मतलब I can speak 3 languages। तो now look into these 3 sentences. In the first you can see ability, मतलब I can speak, मतलब मैं ये काम कर सकती हूँ। I can pick this luggage।
परमिशन, व्हेन मैं उसे बात कर सकती हूँ, कर लूं एंड कर सकती हूँ। तो कर सकती हूँ, कैन आई स्पीक। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में शायद। तो ही कैन बी हियर एनी टाइम, कभी भी वो यहाँ आ सकता है। द प्रिंसिपल कैन बी देयर, प्रिंसिपल कैन विजिट एनी टाइम, प्रिंसिपल मैम कभी भी आ सकती है। तो when there is such kind of probability, we are using the word can. Next is can and could, both are related. तो could is अब नहीं कर सकती, जैसे मैं बचपन में आई कुड स्विम, अब नहीं कर सकती। बचपन में मैं अंधेरे में चल सकती थी, अब नहीं कर सकती। और पेपर में सबसे ज्यादा आता है ये, दिस वन कम्स इन द एग्जाम अ लॉट। When I was 5 years old, I could ride a bicycle. मैं तो 5 साल में चला सकती थी, मतलब अब भूल गई। कई बार आप स्कूल में खड़े होते हो, टीचर्स बातें कर रही होती हैं, आपको जाना होता है, तो कुड यू गेट असाइड, एंड इट कैन बी अ पास्ट रिक्वेस्ट एंड प्रेजेंट रिक्वेस्ट। वुड यू, कुड यू, दोनों हो सकता है। कुड इज मोर व्हाट यू से प्रेजेंटेबल एंड सॉफ्ट। कुड यू प्लीज गेट असाइड। वो अपनी मदर के परमिशन के साथ थिएटर जा सकता था। मतलब जब हम कहानियां सुना रहे होते हैं, व्हेन वी आर फ्रेमिंग द स्टोरीज एंड एट दैट टाइम वी वांट टू मेंशन समथिंग, वहां पर वी आर यूजिंग द वर्ड कुड फॉर द पास्ट रेफरेंस। द नेक्स्ट इज विल। आप लोगों ने फ्यूचर टेंस में पढ़ा था। विल इज, सॉरी, इन द टेंसेस यू हैड रेड, विल इज यूज्ड फॉर द फ्यूचर। मतलब मैं ये करूंगी, मैं जाऊंगी, आऊंगी। सो इट इज anything which is going to happen. It will rain tomorrow. Any prediction, anything. That's we have already done in the tenses. Spontaneous. Spontaneous मतलब उसी वक्त, आज बहुत गर्मी है, I'll not go out, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। So when we said this thing, याद रखिए क्लास 9, while we are adding the what you call as modals, so we need to understand the situation. I cannot go out, I may not go out, but यहां पर मैं जो बताने वाली हूं वो ये है कि आज बहुत गर्मी है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी।
तो मेरा जो माई एम इज टू टेल मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो दैट इज हाउ वी यूज द मोडाल। नाउ मोडाल में कैन भी सही रहता है, मतलब मे भी सही रहता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड उससे पहले सेंटेंस क्या बता रहा है, व्हाट इज द सेंटेंस रेफरिंग टू। तो इट इज, तो दिस इज डिसीजन दैट कि आज बहुत गर्मी है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा खेलने के लिए या नहीं जाऊंगी खेलने के लिए। मतलब हेयर द स्पॉन्टेनियस डिसीजन, मतलब अभी बहुत गर्मी है तो नहीं जाना मुझे। तो दैट इज आपका व्हाट यू कॉल एज, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनियस डिसीजन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी यूज इट। नेक्स्ट इज वुड। वो ऐसा मतलब करेगा, वो ऐसा करता था। एंड ऑल्सो व्हेन वी आर यूजिंग इट वुड हैव बीन बेटर, it would have been better if you came early। ऐसा अच्छा हो सकता था, तो it could have been की जगह हम यूज करते हैं it would have been, it would have been। would you like to have pizza, और he would often play on the sands, खेलता था। तो would we use when हमें लगता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर we need to use it in the करता था। he could मतलब वो कर सकता था लेकिन करता था, तो we are using the word would। now comes one more very, what students say tell me कि मैम ये shall कहाँ यूज होता है। सी वैसे तो यस, जब हम लोगों ने टेंसेस किए थे तो वी सेड कि shall इज यूज विथ यू या फिर वी हम यूज करते हैं इन द फ्यूचर रेफरेंस। तो सबसे पहला तो हमारा होता है shall इज यूज फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। बट जो हमारा shall है, इट इज ऑल्सो अ साइलेंट प्रॉमिस, इट इज ऑल्सो अ साइलेंट प्रॉमिस। मतलब अब मैं इस काम को करना शुरू करूंगी, आई शैल लुक इन टू दिस मैटर। मतलब इट इज एन इंटेंशन, मैं अब करूंगी, आई शैल लुक इन टू दिस मैटर। आई विल का मतलब है मैं करूंगी, आई शैल मतलब इन अ वे आई एम प्रॉमिसिंग, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। तो फर्स्ट इज इट्स अ फ्यूचर रेफरेंस।
So shall is a silent promise and also a future reference. Normally we use it with you, we, हम use कर. Now comes should. Should is not exactly the past tense of shall. Should is something advice, suggestion. Should हमारा होता है एक एडवाइस, एक सजेशन. जैसे वी शुड वियर, वी मस्ट वियर हम बोलते हैं, वी शुड वियर, वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. तो इन हिंदी वी कॉल इट एज चाहिए. शुड को हम हिंदी में कहते हैं चाहिए. तो व्हेन हमारे सेंटेंस में हमें लगता है कि द सेंटेंस इज रेफरिंग टू द वर्ड चाहिए, देन वी यूज शुड. जैसे you should eat lots of fruits. You should go to the doctor if needed. अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए. So when we are advising someone, when we are giving some kind of suggestion, या it may be even blame, blame भी कर रहे हैं, he should be punished, regret कर रहे हैं, I should have been careful. I should have been careful. So when we are मतलब कि अगर हम रिग्रेट करते हैं, ब्लेम करते हैं, खुद को ब्लेम करें, भाई मुझे देखना चाहिए था, आई शुड हैव सीन, आई शुड हैव टोल्ड, मुझे बोलना चाहिए था. मतलब एनीथिंग, इट्स नॉट लाइक आई, एनीथिंग व्हेन वी वांट टू, व्हेन वी आर रिग्रेटिंग, व्हेन वी आर, हम लोगों को लगता है कि हमारा ये काम जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जब वर्ड आपके हिंदी में, इफ इन अनदर वर्ड इफ इट कम्स टू योर माइंड कि इट इज समथिंग व्हिच रिलेट्स टू चाहिए, then we use should. So shall is something future reference, a promise, and should is something advice, suggestion, regret, something like blame. जब हमने ऐसे अपने सेंटेंस को व्यक्त करना, when we want to express it in this way, then we use should. So from this we have done can, could, will, would, shall, should. Now next comes is may. We all know may is something probability, possibility. Where we are using it, pehla probability. Now there is a very sleek difference between may and might. तो मे होता है मतलब आप बाहर देखते हो और आपको लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो वी से इट may rain heavily.
या बारिश नहीं होगी, इट मे नॉट रेन। तो मे इज व्हेन यू फील देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, चांस है, चांस है। आई मे मीट, आई मे मीट माई ब्रदर, मतलब हो सकता है मैं वहां जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू चेन्नई, आई मे मीट हिम। सेंटेंस हमेशा सिंगल नहीं रहेगा, देयर माइट बी अ सेंटेंस जो आगे और पीछे है। तो आई एम गोइंग टू चेन्नई नेक्स्ट वीक, आई मे मीट हिम, हो सकता है। सो व्हेन इन योर टोन, आपके टोन में, आपके मीनिंग में, इट इज समथिंग विच इज प्रोबेबिलिटी, शायद, तो आप यूज कर रहे हो पहला में, पहली बार, पहली बार। सेकेंड इज वी यूज मे फॉर विशेस। नाउ इन दिस इट इज नॉट कि भगवान शायद उसको ब्लेस करेगा, दिस इज यूज एज एन एक्सप्रेशन ऑन अ होल। ये एक एक्सप्रेशन है, इट इज नथिंग रिलेटेड टू मीनिंग की मे गॉड ब्लेस मतलब शायद भगवान उसको ब्लेस करेगा। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। देन पोलाइट रिक्वेस्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आप लोग अपने स्कूल में भी यूज करते हो। स्कूल के अंदर सबसे कॉमनली यूज्ड, आप अपने टीचर के साथ जो यूज करते हो वो यही है कि मे आई, यू कैन ऑल्सो से मे आई हेल्प यू, आई कैन, मे आई कैन आई हेल्प यू इज मैं आपका, आपकी मदद कर सकती हूँ। मे आई हेल्प यू मैं करूँ। द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे इज दिस, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद आऊंगी, तो कैन आई। एंड इफ आई वांट टू से इन अ पोलाइट मैनर, मे आई मैं कर दूं, मैं कर दूं, तो मे। पास्ट रेफरेंस ही माइट, एंड लेस प्रोबेबिलिटी, मतलब अभी मैंने ऊपर आपको बोला कि इट मे रेन हेविली, तो इफ आई हैव टू से इट मे रेन हेविली को अगर मेरा एक्सप्रेशन, मेरा मीनिंग है कि कम संभावना, देर इज लेस चांस, तो देन आई मे यूज इट माइट रेन, या फिर इट माइट नॉट रेन। वो सो गया होगा, वो सो गया होगा, मतलब someone says he, I went to meet him, he did not open the door, तो आप कहते हो वो सो गया होगा, he might have slept, वो सो चुका हो, सो गया होगा। मीन्स यहाँ पे मतलब है तो प्रोबेबिलिटी, बट इन द पास्ट रेफरेंस यू आर टेलिंग he must have slept, he might have slept। अब मस्ट होता है व्हेन आपको लगता है कि श्योर है, देन वी आर यूजिंग द वर्ड मस्ट। तो माइट तो सो गया होगा। द नेक्स्ट इज अगेन शुड, सॉरी मस्ट। अभी हमने यूज किया था शुड, हमने यूज किया था शुड, तो इट इज इन अ वे सिमिलर टू शुड। नाउ मस्ट होता है when we say there is a rule, a
नेसेसिटी मतलब करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब मैं कर सकती हूँ, इस कैन, लेकिन मस्ट इज मुझे करना ही पड़ेगा। देयर इज मतलब मेरा ऑब्लिगेशन है, इट इज एन ऑब्लिगेशन, मुझे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी must wear seat belts while driving. It's a rule. It is a हमारे लिए मजबूरी है. Obligation means it's obligation, मजबूरी है. We must obey the traffic rules. We must obey the traffic rules. और अगर हम इसको नेगेशन में बोलते हैं, he must not have done, वो नहीं कर सकता था. When you are sure, he should not have done मतलब उसे करना नहीं चाहिए था. लेकिन must हमारा होता है when we say in the negation, he must not have done मतलब when you are sure, उसने ऐसा नहीं किया होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता. he cannot do this, he must not have done, वो बिल्कुल नहीं कर सकता. when you are sure about this मतलब I am telling you class 9th again and again all these examples. Okay, when you are, while you are filling the your sentences, you need to understand कि वो sentence क्या कहना चाहता है. अब ये can अगर मैं कहती हूँ he cannot have, he could not have done, तो मैं मतलब कि वो नहीं कर सकता था. but he must not have done, there is something मेरे tone में, there is a surety, वो नहीं कर सकता, 100% नहीं कर सकता. and he should not have done, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. So the sentence को आपको you need to understand कि what the sentence wants to convey, and accordingly you need to. देखिए must हम तब fulfill कर रहे हैं अपने sentences में. Now this is not मतलब कि limited to your grammar, it is not limited to only your मतलब जो आप लोग sentences करने वाले हो. Editing आ रहा आपके, editing आ रहा है. Your questions will be there on the basis of editing, fill in the blanks. तो आपको जो है नीड टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ्स, और उसके अकॉर्डिंग यू शुड डू. वी वुड बी डूइंग 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ एडिटिंग आल्सो, दैट विल हेल्प यू आउट. देन एक और हमारे आता है अंडर द सेम थिंग, ऑट टू. नाउ अगर आप देखो, ऑट के साथ टू आया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर फाइंडिंग सच सेंटेंसेस, आपके ये जो टू जो है ना, ये लगा हुआ होता है इन योर फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है. बट ऑट टू हम यूज कब करते हैं, मतलब ऑट टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑट टू? ऑट टू का मतलब होता है जो जबरदस्ती है, मतलब इट कैन बी अ सिनोनिम टू मस्ट. It is a synonym to must. And this is when there is a moral obligation. मतलब आप morally आप responsible हो, आप morally responsible हो कि आपको ये चीज करनी चाहिए, करना पड़ेगा. For example, children ought to obey their parents. Children must obey is also equally right. लेकिन children ought to का मतलब है उन्हें करना, बिल्कुल करना चाहिए, मतलब this is very necessary for them. We ought to save our earth. We ought to save our earth. तो यानी कि हमें करना चाहिए. Here it is something हमारी moral duty है, moral duty है हमारी.
So this is where what you call ought to comes. Then of course we have what we call as, हमारे पास और भी होते हैं जैसे needed. Needed, I need to go to the doctor. Need कहाँ पे है? When we talk about the word need, तो need हमारा होता है जब हम कहते हैं जरूरत, necessity. And this need can be synonymous to has to, have to, उसे जाना है. जैसे yesterday one of the students said, today I need to join my maths class early. I have to go. I have to go to doctor. I have to go to market. So I need to. I need to. तो वहां पर हम जो है we use what we call as need. Has to, have to, जाना पड़ेगा. जाना पड़ेगा. Has we use with singular, जैसा हमने tenses में किया था. Have with I, we, plurals, and had when we are talking about what we say past tense, past reference. So that is आपका जो है modals. Some of them we have the proper one, and this of course जैसे I did not. Now एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है, when you are framing your what you call as sentences, जब हम modal verb यूज करते हैं तो I can, तो I can talk, I could talk, तो I could past tense है तो talked नहीं होगा, talked नहीं होगा. ये आपको जो है याद रखना है कि when we are using the modals, we normally use the verbs first form. Like you see, we ought to save our earth. तो we ought to saved नहीं है, we ought to save our earth. In your exams, you might be having, I've already prepared an assignment, we would be doing it. In your exams, you might be having a gap filling, जैसा आपने कल tenses में किया था, similar kind, or you might be having the editing. Now, editing will not be completely based on your modals. ऐसा नहीं है कि आपके पास जितने भी हैं उनमें पूरा का पूरा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा. Yes, एक या दो उसमें से जो है आपके वर्ड्स जो है that would be belonging to, that is what we call as integrated exercise.
This is a grammar exercise. In your language and literature sections, जिन बच्चों के language and literature है, उनमें what happens is we may be having the editing और आपको जो है सिर्फ एक मतलब आउट ऑफ ऑल सेंटेंसेस सिर्फ एक आपको जो है ठीक करने को दे सकते हैं। इन द कम्युनिकेटिव, जिन बच्चों के पास कम्युनिकेटिव होता है उनको जो है पूरा का पूरा ऐसा ऐसा बना के दे दिया जाता है एंड दे हैव टू फाइंड आउट। नाउ वी आर हेयर टॉकिंग ओनली अबाउट, मतलब कि अभी हम सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट मोडाल्स। अभी हमारा जो ये एग्जाम्पल है दिस इज ओनली अबाउट मोडाल्स, तो हम लोग सिर्फ इसके अंदर जो मोडाल वर्ब्स हैं उनको देखेंगे कि व्हाट इज द इनकरेक्ट वन एंड व्हाट विल बी द करेक्ट वन। जैसे यहाँ पर लिखा है ऑल ऑफ अस शुड गो टू अ थीम पार्क, देयर वी कुड राइड ऑन डिफरेंट स्विंग्स, वी मे रिमेंबर दैट वी शैल बी अ सीट बेल्ट्स वेयर एवर नीड। अब अगर हम पहला देखते हैं ऑल ऑफ अस शुड गो, तो शुड डजंट सूट राइट, ऑल ऑफ अस shall go, all of us can go, right? हम जा सकते हैं, जा सकते हैं। there we can ride on different swings, वहां हम मजे ले सकते हैं। then we may remember, now may remember थोड़ी होता है, there is nothing probability। ये मतलब कि हमें आगे लिखा है हमें बेल्ट पहनना है, आगे लिखा है we shall wear belt wherever necessary, यानी कि बेल्ट पहनना जरूरी है, तो we must remember that we should wear belts wherever needed। तो यहां पर हमारा जो वर्ड है वो है should, could, may and shall। ये चारों जो है यहाँ पर गलत है। तो इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेड ऑफ शुड इट शुड बी, इट्स अ सजेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एडिटिंग। यानी कि अगर आपके पेपर के अंदर आने वाले टाइम में, बिकॉज अभी तक तो आई डोंट थिंक एडिटिंग हैज कम, बट इफ एडिटिंग कम्स इन योर एग्जाम, तो आपको ऐसे, अभी तो हम लोग सिर्फ मोडाल्स के बारे में बात करें तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन मोडाल्स, बट इन द इंटीग्रेटेड ग्रामर एवरीथिंग विल बी देयर। बट मोडाल के अंदर आपको ये समझना है कि हाउ वी हैव टू एडिट। The MCQs will be discussing in the next class. Next class में हम लोग MCQs वाला questions करेंगे, but editing आएगा तो you have to look into these words. You have to look into the entire passage. और अगर आपको लगता है कि उसमें मोडाल गलत है तो आपको ये समझना चाहिए कि in which मतलब कि context the sentence is being said। जैसे यहाँ पर है all of us should go to a theme park, तो शुड तो यहाँ पर बन नहीं सकता बिकॉज हमें जाना चाहिए, इट डजंट हैव द राइट रेलेवेंस। तो उसकी जगह हमें बोलना चाहिए वी कैन, हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं मीन्स इट्स अ सजेशन ऑल्सो। देन वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर राइट कर सकते हैं और फिर आगे इट इज समथिंग, एक आपको चेतावनी दी है, अ कॉशन, तो वी मस्ट रिमेंबर and we should wear belts wherever necessary। तो इस तरीके से you can edit your things if you, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके आता है। तो this is what we call as modal verbs। These are all the modals। ये हम लोगों ने किया है, can, could, will, would, shall, should, may, might, must और to। Of course we also have needed, have to। जैसे भी हम लोग, जब हम किसी भी मेन वर्ब के अंदर, जो भी हमारा मेन वर्ब होता है
उसके साथ हम लोग जो भी वर्ड यूज करते हैं उनको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स या मोडाल वर्ब्स के नाम से जानते हैं. एनीथिंग दैट कैन बी देयर. So mainly these are called as a modal verb.